करो, उसके बाद बता को तुम्हें फोटो लगा को भर को बेल देखो सिक्का मार लो कर को सबको विनंती कर ಸರ್ ನಾಟಕದ ವೋಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರಾಕ್ತಾವ ಬೋಗಸ್ ವೋಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ. ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದದ ಅದು. ಈಗಿಲ್ಲ 2023 ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಆ ಸಿದ್ಧ ಸಿರಿ ಅವರು ಇದೇ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ. ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ, ಪಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಲಾಕತ್ತಾರ. ಯಾರ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರ್ದಾರೆ ರೊಕ್ಕ ಕೆಲಸ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ. ಬಿಎಲ್ಎಗಳು ಗುಡಿಗೊಂಡಾರೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೇಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಾರ, ಮನಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ DC ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಅಂದೀವಿ, ಮಸೂತ್ಯಾಗನು ಕುಂದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಗುಡ್ಯಾಗನು ಕುಂದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ದರ್ಗಾದೊಳಗ್ನು ಕುಂದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಅವ್ರ ಆಧಾರ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂಟಿಸಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ರ ಅಂತ ಅಂದಿವಿ. ಬಿಎಲ್ಒಗಳೇ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೈತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ನೊಂದವ್ರು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಅದಾರೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೊಣೆಗಾರ ಯಾರು ಹಾಕೋದು? ಈಗ ಬೇಲೋಗಳನ್ನೇ ಹೊಣಗಾರ ಅವರೇ. जोशी थोड़ा अस्सलाम वालेकुम। आज जो DC ऑफिस में हमारे शहर के कांग्रेस लीडर आपको हमीद मुशरफ साहब के नेतृत्व में और कांग्रेस के तमाम लीडर मिलकर DC साहब को निर्णय करे कि जो SR चल रहा उसमें BLO भी बराबर काम नहीं करे थे, करना था उनको भी ट्रेनिंग नहीं मिली। और जो बोकस जो वोटा थे नागटान के इधर के उधर हुई और बाहर के जो हैं उसको जो हमीद मुशरफ साहब हमारे कांग्रेस के लीडर उन्होंने है, खास करके उसके ऊपर तवज्जो देखे तो भी देखो और बार साबित करने से भी वो नहीं समझे। एक बार भी ऐसा नहीं होना, ऐसा तो अभी ऐसा होता बाहर के भी वोटा रहेगा तो उधर के इधर कर रहे हैं, सिंगल वोटा है। उसके लिए बहुत देर तक डिस्कशन हुई, DD साहब भी और कमिश्नर साहब वो सब भी बराबर करते हैं। और BLO को भी सीधा हर घर को जाकर करेक्ट काम करो और करेक्ट होता वो जो फॉर्म है भरो बोल के उनको आदेश करते हैं, एक भरोसा दिया हम लोग। ओके सर, आपका नाम सर? इजाज अहमद मुखबिर, कांग्रेस कार्यकर्ता है। ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಹಿಂದೂಗಳು ನಿಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲೇನ? ಮತ್ತು ಆ ಪಾಪ ಅಮಾಯಕರವರು ಹಳ್ಳ್ಯಾಗಿನ ಮಂದಿ ಅವರು ವೋಟರ್ ID ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ, ಅವರು ಹೊಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ, ಅವ್ರ ಮನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ. ಅಂಥವ್ರು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋರು. ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನಿಜವಾದ ವೋಟರ್ ಬಿಜಾಪುರ ವೋಟರ್ ಯಾರು ಅದಾರ ಅವ್ರು ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ. ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಬೋಕಸ್ ಓಟ್ ಹೋದ್ ಸಲ ಗೆದ್ದಿರಿ, ಈ ಸಲ ಮತ್ತೆ ಬೋಕಸ್ ಓಟ್ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಆ ಅಮಾಯಕರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿ ಜನ ನೀವು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಮನಿ ಮಠ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಲಿ ಅದಾರ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಾಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರು ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೋದ್ ಸಲ ಮಾಡಿದವ್ರು ಚಿಂಚೋಳಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಗೊತ್ತಾಕದ. ಕೇಸ್ಗಳಾಗ್ಯಾವ, ಓಡಾಡತ್ತಾರ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಅದು ಹಿಡಿದು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಒಯ್ದು ಕುಂತಿದ್ರು, ಯಾರು ಬೆಳ್ಸಾಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ನಾಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಯಾರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಮಠ ಉಳಿಸ್ಕೋರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ. ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಅಂತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇನ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತದ? ನಾಳೆ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗ್ ಬಂದ ಕುದ್ಗಿ ಹಿಡಿತಾರ ಅವ್ರ ಕಾಲರ. ಇಲ್ಲೇ ಮಗ್ಲದಾರ, ಈ ಅಲ್ಲಾಪುರ ಓಣಿ, ಚಪ್ಪರ್ ಬಂದ್ ಓಣಿ, ಜುಮ್ನಾಳ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅದಾರ. ಅವ್ರ ತಂದ ಇಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದು? ಸುಮ್ನ ಬೋಕಸ್ ಓಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ನಾವು ಒಟ್ಟ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಮಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮತದಾರರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗದ, ಬೋಕಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬೋಕಸ್ MLA ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮವ್ರು. ನಾವ್ ಏನಿದ್ರು ಅಧಿಕೃತ ಮತದಾರರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಳಗೆ ಸಿಗಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಅದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. ಇದು ಮತದಾರದ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ 20,000-30,000 ಮತದಾರರು ಇದೇ ತರ ಆಗಿದೆ. ನಾಗಟಾನ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ ಸಲನೂ ಇದು ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ತನ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಅರ್ಧ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನೈತಿ, FIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನೈಜ ಮತದಾರರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಬೋಕಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಿಜವಂತಾದಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದಂತ ಮತದಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮತದಾರರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅದಾರ ಮತದಾರರು ಅವರು, ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದು ಸೇರೋರು ಇದ್ರ ಸೇರಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ ಭವಿಷ್ಯ ಇರ್ತದ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ
ನಾಳೆ ಸಾಲಿಗೆ ನೀವು ಇದು ರವಾಸಿ ತೆಗಿಸ್ತೀರಪ್ಪ, ಸಾಲಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತರಿಸ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗ್ಸವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದ ಬಿಜಾಪುರ ತೆಗಿಸ್ತೀರಿ. ಸಾಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೇಕೋ ಬೇಡ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನೌಕರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ, ಅವಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೇಕೋ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಅವಾಗ ಇವ್ ಬರ್ತಾನ, ಯಾವ ಮಾಡ್ಸಿರ್ತಾನ ಅವ್ ಬರ್ತಾನ, ಹೊಯ್ಕೋತ್ ಕುಂಡ್ರದ್ ಹಾಕದ. ಇದರೊಳಗೆ ಏನೈತಿ, ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಮೀಲಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸರ್, ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಮೀಲ್ ಆಗ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ವಾಪ್ ಹೋದ ಮಾತ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ, ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಮಾತ್ ಚಾಲೂನೆ. ಈಗ ಸುಮ್ ನಾವು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಾಮೀಲ್ ಅದಾರ ಅವು ಅದಾರ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ಅಂದ್ರೆ MLA ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಬೋಗಸ್ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಫಾಲೋವರ ಮತ್ತು ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬೋಗಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತೇಳಿ 100 ಸಲ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೋಗಸ್ MLA ಅಂತೇಳಿ. है जिन बीएलओ को सरकार के तरफ से मास्टर ट्रेनर आकर उनको ट्रेनिंग दिए हैं, उसके बावजूद भी बीएलओ ही गलतियां कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इन आज 5वां दिन है, 4 दिन में तकरीबन 20,000 से भी ज्यादा फॉर्म इनोमिनेशन फॉर्म बीएलओ के जानिब से ही मैं समझता हूं कि गलत भरे गए हैं। तो ये बहुत बड़ी मसला है, बहुत बड़ी घटना है। और दूसरा यह है कि बीएलओ घर आना चाहिए, और बीएलओ फॉर्म जब देते हैं, फॉर्म देकर बीएलओ सीधे सीधे फॉर्म ले रहे हैं, जबकि फॉर्म ले रहे हैं तो फॉर्म वो स्कैनिंग करना चाहिए। स्कैनिंग करके उनका जो प्रोजनी हुआ है, यानी किसके साथ से आपने संबंध बताया है, वो ऐप में है, इनोमिनेशन फॉर्म में नहीं है। ऐप में संबंध है तो ऐप में संबंध उनका लिखना है कि इस बंदे ने अपने दादी से किया है, इस बंदे ने अपने बाप से किया है, इस बंदे ने अपने माँ से किया है, इस बंदे ने, तो ये मैपिंग उसमें बताना है। मगर ये लोग सीधे फॉर्म ले रहे हैं। अब मेरा सवाल है, जब आप फॉर्म लेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मैंने किससे मैपिंग किया है? जो सेल्फ मैपिंग है इट्स ओके, जो 2002 में जिसका नाम था वो सीधे सीधे आएगा। जिसका नाम नहीं था, जिस बंदे ने अपने माँ से किया है, दादी से किया है, दादा से किया है, तो वो कैसे पता चलेगा उसको? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये प्रश्न हमने डीसी साहब के सामने उठाया, तो डीसी साहब ने कमिश्नर साहब को भी बुलाया, उनकी AR टीम भी आई, पूरे टीम से हमने बात की है। मेरा पहला मसला ये है कि सबसे पहले जिन जिन लोगों का गलत फॉर्म भरा गया है, चाहे वो पब्लिक की तरफ से हो, चाहे बीएलओ की गलती की वजह से हो, पहली फुर्सत में उनको दोबारा नया फॉर्म दिया जाए। तो हमने ये बात वहां पर रखी। तो डीसी साहब ने भी कहा कि हेल्प किया जाएगा, कमिश्नर साहब ने भी कहा कि हम फॉर्म आपको देंगे अगर ऐसे कोई भी मसले हैं तो। ऐसे मसले नहीं सर, ऐसे हजारों लोग मेरे पास आ चुके हैं, मैंने उनको बताया तो वो पूरी तरह से सहयोग करने की बात की है, फॉर्म देने की बात की है। अगर वो फॉर्म नहीं देते अगर किसी तरह यूं ही माहौल चलता रहा, इसी तरह गलत इनोवेशन फॉर्म भरते रहे, तो हम आने वाले कल में बहुत बड़ा होराट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, हमने डीसी साहब को ये भी जानकारी दी, जो BLO हैं उनके पास 2002 का मतदार पट्टी यानी वोटिंग लिस्ट होना लाजमी है, क्योंकि कई लोगों को 2002 में उनका भाग्य संख्या, उनका कर्म संख्या उनको ही पता नहीं, तो वो कैसे इनोवेशन फॉर्म में भरेंगे? तो कई अहम मुद्दे हैं, तो हर अहम मुद्दे की जानकारी सवाल हमने डीसी साहब के सामने उठाया। डीसी साहब ने जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर करने की बात की है। अगर कल तक ये समस्या दूर नहीं होंगे तो इसी तरह हमारा होराट चलता रहेगा, हम रास्ते तक जाम करेंगे, क्योंकि हर एक वोट हमारे लिए कीमती है। मैं दोबारा कहूंगा, इन बीएलओ के लिए ये कागज का टुकड़ा होगा इनोमिनेशन फॉर्म, हमारे लिए हमारी पहचान है, हमारा हक है, और इस हक के लिए हम लड़ेंगे। तो अभी आपका कहना है कि प्रक्रिया यहाँ पर जो है SIR का जो प्रक्रिया है विथ इन दिस मंथ इट विल बी क्लोज। तो अभी आप अगर इसमें क्या है, बीएलओ लोग अनपढ़ से अनपढ़ हैं, तो उनको फॉर्म फिलअप तक करने नहीं आता, तो अभी गलती का भुगतान कौन, जनता करेगी क्या? वही हमारा सवाल है कि बीएलओ की गलती हम क्यों भुगते? फर्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर डीसी को हमने यही कहा। वो डीसी साहब का कहना है कि फॉर्म कौन भी कैसे भी भरो, लेकिन लिस्ट में पहली लिस्ट में आएगा, बाद में से नोटिस। मैं बोला नोटिस देने की जरूरत क्या है जब हम फॉर्म सही भरे? तो हमारा फॉर्म आप गलत पहली बात लेते ही क्यों? हमारा फॉर्म सही करके दीजिए, हमारा फॉर्म आपके बीएलओ को जानकारी दीजिए कि जल्द से जल्द हमारे जो भी गलत फॉर्म ऑलरेडी लिए गए हैं उन्हें वापस दिया जाए और हमारा सही फॉर्म लिया जाए, क्योंकि आपकी गलती का भुगतान हम क्यों भुगते? इसी सवाल पर हमने यहाँ पर इसी वजह से, ये अहम मुद्दा है आपने जो सवाल किया है, हमने डीसी साहब से आकर कहा है और वो हमारी समस्या को दूर करने की बात कही है और कमिश्नर को भी आदेश दिया गया है।
अभी इस तरह की जो सुस्ती के जो कारण है, जिस तरह से काम कर रहे हैं बीएलओ, डीसी साहब ने उनको जो है बदलाने की बात कही है, उनको और थोड़ा ट्रेन करके एक्सपीरियंस देने की बात कही है। नहीं, बदलाने की तो बात नहीं की, लेकिन हमने कहा है कि आप जब तक एक दो दिन सस्पेंड नहीं करते ऐसे अधिकारियों को, तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। हमारी यही विनती है कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई कर कर जो भी इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं, गलत तरीके से जानकारी भर रहे हैं और जनता को सही से सहयोग नहीं कर रहे हैं, पहले ऐसे लोगों को सस्पेंड करें। उन्होंने भी कहा है अगर ऐसे कोई बीएलओ आपको बहुत ही जनता को परेशान कर रहे हैं तो उनके नाम भी दे दीजिए। तो मैं इस आपके माध्यम से सीधे सीधे बीएलओ को चेतावनी दे रहा हूं, आप हो जाइए होशियार। अगर आप अब होशियार नहीं होंगे तो हम आपके नामों के साथ अब डीसी ऑफिस पहुंचेंगे और जब तक आपको सस्पेंड नहीं किया जाता तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे और हम यहां से हिलेंगे नहीं। इसलिए बीएलओ, सभी बीएलओ के, बीजापुर ही नहीं, मैं पूरे जिले के बीएलओ को कहना चाहूंगा कि हो जाइए होशियार। जो ट्रेनिंग दी गई है उसी के मुताबिक आप काम कीजिए, वरना हम आपको सस्पेंड करने तक नहीं रुकेंगे। ओके सर, थैंक यू। कांग्रेस समिति की तरफ से सब लीडर्स और सब हमारे मुखंड जो है सब लोग मिलके जिलाधिकारी को मिले पीछे सर, और काफ़ी प्रॉब्लम जो एसआईआर में 2-3 दिन में 29 से शुरू आए, 2-3-4 दिन में जो हमारे मुश्किलें आ रहे हैं वो देख के प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई बीएलओस को सबसे पहले पूरा नॉलेज नहीं, उनको जो ट्रेनिंग दे के तैयार करना था वो काम नहीं हुआ है। क्योंकि जहाँ हमें उनकी आवाज़ ज़्यादा हो रही है, नहीं बोलो, आते हैं क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स इतने हैं, क्योंकि जब सवाल कर रहे हैं वोटर्स है तो उसकी जवाब वो भी नहीं दे रहे। दूसरी बात यह है कि सब बीएलओस कहीं ना कहीं बैठ के काम कर रहे हैं, एक तरफ बैठ के। तो इलेक्शन कमीशन का एक सीधा सीधा ऑर्डर है कि भाई आप हर हाल में हर घर को 3 बार विजिट करना, वो है नहीं है उसको उसका जीपीएस करके या उनको लोगों को पूछ के, जो BLA 2 है, BLA 2 का हेल्प लेके वो घर को ढूंढना, हो जो भी पर्सन है वो शख्स को ढूंढ के उनका फॉर्म भरना। तो आप लोग जानते हैं ऐसा कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे हर चीज़ जुड़ी हुई है। मैं लोगों से यही अपील करता हूँ, डीसी साहब भी कहे हैं कि ये हर प्रॉब्लम जो हमने कहा है कि जैसे नागठान का है, नागठान के कई वोट से 5-10 हज़ार वोट आप लोग सिटी में डालते हैं, उनके घर उधर नागठान में, बीजापुर सिटी में आके वोटिंग करके जाते हैं। कई स्टूडेंट्स के वोट्स डाल रहे हैं, कई फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के नाम यहाँ जुड़ रहे हैं। लेकिन जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जो सही वोटर्स कई सालों से, उनका वोटर लिस्ट में नाम आना मुश्किल हुआ है। तो ये सब बातें हमने डीसी साहब से कहा है, उन्होंने हर चीज़ को सीरियसली लेने की बात की है और हमको भी उम्मीद है कि वो करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, मैं अपने लोगों से अपील कर रहा हूँ, बीजापुर के लोगों से, कि एसआईआर एक बहुत बड़ी साजिश है। एक कन्नड़ बोलते हैं हुन्नार, एक बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी है कि कहीं न कहीं माइनॉरिटीज़, खास करके इसमें SC/ST है, OBC है, लेकिन कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ को इलेक्शन प्रोसेस से दूर रखना है, परेशान करना है। और आप खुद जानते हैं, आप सब टीवी देखते हैं, सब देखते हैं, किस तरह से ये RSS और बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ साजिश करके एक सबसे बड़ी साजिश है। ये लोग NRC करना चाहते थे, किसी वजह से NRC नहीं हो पाई, NRC नहीं हो पाई, तो ये जो SIR है ये भी NRC है एक तरह की, एक सॉफ्ट तरीके से इन्होंने NRC को इम्प्लीमेंट किया है। तो मैं आपसे ये करता हूँ कि आप कंप्लेंट करने के बजाय आप अपना वोट बचा के रखें, आपने वोटर लिस्ट में अपना नाम बचा के रखिए, ताकि जो गारंटीज हैं, जो गवर्नमेंट से सहूलत मिलेंगे, जो पासपोर्ट को रिन्यूअल आता, तब सबको प्रॉब्लम करने वाले। बड़े बड़े लोगों को ये लोग पासपोर्ट नहीं दे रहे आज, क्योंकि वो SIR में नाम नहीं है। कई लोगों की गारंटीज, वेलफेयर स्कीम्स है गवर्नमेंट के, ये सब निकाले जाएंगे, छीने जाएंगे। तो आप सबसे मैं ये करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि दिली दरखास्त करता हूँ कि आप सब लोग, हम बोल रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आप खुद उसके पीछे लगिए, अपने घर का SIR में नाम आने सकते, क्योंकि मैपिंग है। मैपिंग में अगर नहीं भी है तो डीसी साहब कहते हैं मैपिंग नहीं भी है तो आप अपना वोटर लिस्ट में नाम आ सकते हैं। सहूलतें भी बहुत है, आप दूर रख के देखेंगे तो मुश्किल दिखेगी, लेकिन आप जब अंदर जाएंगे तो इसमें आसानी भी है। ऑफिसर्स आपको हेल्प करेंगे, वरना हम लोगों को आप फ़ोन कीजिए, हम लोग किसी न किसी तरह का आपका प्रॉब्लम। सुनने में आया है कि ऐसा जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो इसी मंथ में क्लोज होने वाला है, तो उसके लिए जो है वक्त नहीं है। और पहली बात जो है
जो एसआई फॉर्म जो बीएलओ काम कर रहे हैं 7th स्टैंडर्ड के बच्चे भी इंटेलिजेंट हैं कि मोबाइल कैसे यूज करना है। तो अनपढ़ बीएलओ लोगों को डालने का काम यहाँ पर किया गया है। तो फॉर्म फिलअप गलत तरीके से फिलअप कर रहे हैं। बीएलओ जो है सबसे पहले हमें डीसी साहब के सामने बोले कि तुम्हारे बीएलओ अनफिट है, ये हमने कहा है। और इसके अलावा आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये 30 तारीख को 29 जून से 30 जुलाई को क्लोज आना, किसी हालत में पोस्टपोन नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। तो किसी हालत में आपका टाइम एक्सटेंड नहीं होगा, तो आपको इसी वक्त में करना है। एक बार नाम चलेगा, फिर 1 महीना आपको एनोमलीज एंड डिस्क्रिपेंसीज जो प्रॉब्लम्स कंप्लेंट करते हैं वो भी 1 महीना चलेगा, 2 महीने चलेगा। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप 30 जुलाई के अंदर करें, क्योंकि आपको घूमना बहुत पड़ेगा बाद में। तो रिजेक्ट होने के बाद जिस तरह से वेस्ट बंगाल है, हमारा बिहार है, तमिलनाडु, देखो जो लोग कंप्लेंट लेके कोर्ट को गए 27 लाख लोग कंप्लेंट करें, 1 लाख का भी क्लियर नहीं, इलेक्शन भी खत्म हो। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का ये है। कहीं ना कहीं हम लोगों को दरकिनार करने का एक साजिश है। इसको मैं जानता हूँ क्योंकि कई हमारे एजुकेटेड लोग हैं, हमारे कम्युनिटी में कई रिसोर्सफुल पर्सन्स हैं, उनको वॉलंटरी आके काम करना चाहिए, हमारा साथ लेना चाहिए। और हमारा ये भी लीजिए कि हमारी जरूरत पड़ने पर हमको यूज भी करें। शुक्रिया, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।